और अगर कोई फ्रेशर है उसको कौन सी बेसिक चीजें आनी चाहिए अगर उसको डेवॉप्स में ही जाना है? लिनक्स चाहिए, नेटवर्किंग फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। हाँ, क्लाउड तो आना ही जरूरी है अगर डेवॉप्स में है तो। लाइक अकॉर्डिंग टू यू कौन से इम्पोर्टेंट टूल्स है कि अगर कोई फ्रेशर है उसको लर्न करने चाहिए स्टार्टिंग से? तो पहले तो लिनक्स आना ही चाहिए, वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेटवर्किंग फंडामेंटल एंड क्लाउड, एनी वन क्लाउड, देन दे कैन स्टार्ट लर्निंग जेनकिन फॉर CI/CD पाइपलाइन। अगर कोई फ्रेशर है जो डेवॉप्स में एंटर करना चाहता है बट उसको कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं, तो वो कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है, जस्ट रेंज? ओके, तो इट्स Hey, hi Kiran Kumar. Hello. How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm doing good. Thank you so much for coming. हम लोग आपके वेट कर रहे थे कि कब आप आए और हम लोग ये पॉडकास्ट चालू करें. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। The pleasure is all ours. So हम लोग पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं आपका, और मैं जस्ट चाहती हूँ कि आप अपना एक जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि हमारी ऑडियंस आपके साथ फेमिलियराइज हो जाए कि what are you doing? Yes, sure, definitely. So my name is Kiran Kumar Wagalkave. I am from Latur, Maharashtra. Okay. Yeah, and then I have completed my bachelor from Shivaji University, and then I moved to Pune for job searching. So I have started my journey from Tata Communication Limited, and I work as a network engineer there. Okay. And then I work for many companies like Wipro, Infosys, then Qualtech, and currently I am working in Amdocs as a DevOps specialist. Okay, so how you have switched yourself from networking background to DevOps? Yeah, earlier in my early career, I was not that much knowledgeable. I mean, say in how companies and career growth, I did not get that much guidance. Okay. So I was just going through the flow. So then I got to know that DevOps is training, and then I started research on that, watching YouTube videos, reading the blogs. And in 2020, I got married and I was working in Infosys. Okay. And that time lockdown was happening. Lockdown, And correct, due to that lockdown, our project was ramped down. Oh. So there was no project for us. And then I was in 2-3 months on bench. And Infosys decided to have some training. So they just gave us cloud-based training, AWS and Azure. And then I start building my interest in cloud. And one more thing is that I was in rotational shift that time when I was in network engineer. So it frustrated me. I was totally away from the society because I was working in night shift. Correct. And I haven't give that much time to my families. I was looking for work-life balance. So that inspired me to get into the DevOps journey. अच्छा, मुझे बस एक आउट ऑफ क्यूरोसिटी मुझे ये पूछना है कि बेंच पे मतलब होता क्या है एग्जैक्टली? हम लोग को बहुत सुनने को मिलता है कि अब मैं तो बेंच पे हूँ, मैं ये हूँ, ये होता क्या है एग्जैक्टली? Okay, that's a really good question. Earlier, I was also, when I started career, bench means what? The bench that we are sitting there. It's not like that. Bench means you are in the company, but you don't have any work. Means Okay. you don't have the project. You are just going and sitting there and coming back to home, and you are getting the salary. But it's risky. It's not good. ओके, तो मतलब काम तो कुछ होता नहीं है, तो फिर मतलब सैलरी भी किस चीज के देते हैं वो लोग? कंपनी जैसे हायर किया है एम्प्लॉय को, तो उसको रखना ही है, तुरंत तो निकाल नहीं सकती। तो अगर उनके पास कुछ पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो okay. अलोकेशन कर सकते हैं। अगर इन Okay. केस उनको बड़ा प्रोजेक्ट आ गया और उनके पास मैन पावर ही नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो Okay. जाता है, तो वो थोड़ा वॉच करते हैं Okay. थोड़े दिन बाद। ये प्रोजेक्ट पाइपलाइन में नहीं है तो बोलते हैं लेट गो। ओके, सो आई कैन सी इन योर सीवी कि आपने टाटा कम्युनिकेशन के साथ भी वर्क किया है, विप्रो के साथ काम किया है, और आई गेस आपने नोकिया के साथ भी काम किया है, राइट? तो बट दैट वाज इनटू नेटवर्किंग फील्ड, correct. एंड अभी आप एमडॉक्स के साथ डेवऑप्स में काम कर रहे हैं, तो वो कैसे इंस्पायर किया आपको और कैसे वो स्किल सेट आपने डेवलप किए? As I earlier mentioned that due to night shift, that inspired me to get into the stable and day shift job. It's not like that always you will get the day shift job, but sometimes you have to work on night shift as well. Depends on project and client. But most of you have to work with developers. एक रीजन था कि शादी के बाद मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए था और एक स्टेबल जॉब चाहिए था। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, रिसर्च किया, कुछ प्लेलिस्ट गो थ्रू किया। एंड जैसे मैंने अर्लियर आपको मेंशन किया कि मैं इन्फोसिस में क्लाउड पे उन्होंने ट्रेनिंग दिया, तो मेरा ऑलरेडी इंटरेस्ट आ चुका था। अच्छा, तो मैंने जैसे लर्न करते गया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ते गया, फिर मैं इंटरव्यू देते गया। कुछ इंटरव्यू बहुत बेकार गए
और कुछ इंटरव्यू मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिए। तो मैं जब स्विच किया मेरे पास 3 ऑफर थी, मैंने बेस्ट Okay. ऑफर करके ज्वाइन कर दिया। वेरी नाइस। और ऐसे कभी कभी लगता है कि जो आपने बेसिक स्किल सेट हम लोग बोल सकते हैं या जो की लर्निंग बोल सकते हैं जो नेटवर्किंग में सीखी थी और वो अभी अभी आपको डेवऑप्स में भी काम आ रही है, ऐसी कौन सी चीजें हुई थी आपकी लाइफ में? DevOps is backbone of Linux and networking. Correct. If you know the networking and Linux, you are already there. Half part you already there. तो नेटवर्किंग में हम लिनक्स बेस्ड कमांड टर्मिनल यूज करते हैं ट्रबल शूटिंग के लिए, लॉगिंग टू राउटर, लॉगिंग टू सर्वर। तो सेम थिंग यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, जो सर्वर्स है हमें उसको लॉगिन करना हो, वो सब लिनक्स बेस्ड पे है। तो Okay. वही एक मेरा पॉजिटिव पॉइंट ये रहा कि मैं नेटवर्किंग में था तो मेरे को इजी पड़ा ट्रांजिशन इनटू DevOps। ओके। और अगर कोई फ्रेशर है तो उसको कौन सी बेसिक चीजें आनी चाहिए अगर उसको डेवऑप्स में ही जाना है? लिनक्स फर्स्ट Yeah, और आगे फिर कौन सी टूल्स एंड लिनक्स टेक्नोलॉजी? चाहिए, नेटवर्किंग फंडामेंटल क्लियर रहना Fundamental, चाहिए। okay. हाँ, OSI लेयर क्या होता है, ट्रैफिक कैसे जाती है, कौन कौन से पैकेट थ्रू जाती है, उनका फ्लो क्या है, और क्लाउड तो आना ही जरूरी है। अगर DevOps में है तो क्लाउड इज मस्ट। ओके, सो बेसिक जो हम लोग चीजें बोल सकते हैं विच इज लिनक्स, सेकंड इज फंडामेंटल और एनी क्लाउड, राइट? Any और लाइक cloud. एनी स्पेसिफिक क्लाउड? It depends on company and interest of the candidate as well. So I will Okay. prefer to go with AWS. Why? Because it has more shares in the market, around 34% shares in the AWS. Most of the company prefer for the मोस्टली cloud. AWS। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू यू आपने जेनकिंस पे भी काम किया है, डॉकर्स, क्यूबरनेटिव्स, AWS पे भी काम किया है, राइट? तो अकॉर्डिंग टू यू लाइक अमॉन्ग दीज व्हाट इज द और विच इज द बैकबोन ऑफ डेवऑप्स हम लोग बोल सकते हैं? बैकबोन बोले तो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली पूछे तो क्लाउड तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, और उसके बाद कुबरनेटिस। ये 2 चीज़ें अगर करें तो आप मार्केट में आगे जा सकते हैं। कुबरनेटिस क्योंकि बड़े स्केल पे जो एप्लीकेशन रहते हैं वो कंटेनराइज बेस्ड रहे, तो उसके डिप्लॉयमेंट में और उसको मेंटेन एंड मैनेज करने में ईजी जाता है और कॉस्ट सेविंग भी है। अभी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो? हाँ, आई एम वर्किंग इन वन ऑफ द ओके, और लाइक कौन से डोमेन में आप, अगर हम लोग को छोटा सा एक ब्रीफ दे देंगे कि आप कौन से डोमेन में काम कर रहे हो और आपका डे कैसे जाता है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर? Okay, domain is like in the DevOps only. There are lots of different kind of client like networking, 5G project, then hospitality, medical field, or industrial. Everywhere DevOps is required. So currently, I'm working the project which we are using the AWS, Okay. Jenkins, Terraform, Docker, and Kubernetes. And day to day, first I will say, whenever I log in, I need to check the mails. Is there anything is ongoing? Is there any priority task assigned to me? And then I will check the monitoring. So we use the Grafana and Loki for the Okay. monitoring and Monitoring, logging. yes. So I will check, is there everything, servers and services, the CPU utilization, everything is running up and running and everything is fine. Then we'll check if there any spike or something is health check is not good. Then I need to check why it is not good. Then I will log in and I will fix that issue. And is there any priority issue is ongoing throughout the day? Then I need to take it up, talk with the team and escalate to the higher management to get it resolved as soon as possible. ओके, तो ये प्रोजेक्ट पे कितने लोग काम करते हैं फिलहाल? Currently we are working 13. 13? Yeah, including tester and development. ओके, तो अगर डेवऑप्स में ही अगर हम लोग बात करेंगे कि एक प्रोजेक्ट में कितने सारे डेवऑप्स जो एम्प्लॉयज है कितने काम करते हैं ऐसे? Okay, it's depends, but always lesser than the developers. ओके, Yeah, if I say in my project we are working 13 people single project, so we are 3 people into DevOps and Okay. 7-8 in development and 2-3 ओके। and तो आप tester. तीनों लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हो या अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी दिए जाते हैं और अलग अलग क्लाउड पे भी परफॉर्म करते हो? हाउ इट इज? एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, लेकिन जैसे कोई ऑटोमेशन में एक्सपर्ट है, कोई Okay. क्लाउड पे है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी वर्क टुगेदर एंड सेम प्रोजेक्ट। ओके, तो आप कैसे वो आइडेंटिफाई करते हो कि अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस क्लाउड ओनली, और लेट्स कंसिडर कि अभी आप डेवऑप्स में तो आपको AWS पे काम करना है या Azure पे काम करना है, हाउ डू यू मैनेज दैट? हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट कि कौन से क्लाउड पे काम करना है आपको? ओके, ये जब भी प्रोजेक्ट डिसाइड होता है वो सेल्स टीम और कस्टमर ये डिसाइड करते हैं,
और उसके बाद जो हमारा टेक्निकल पर्सन होता है, आर्किटेक्ट बोलते हैं उसको, वो डिज़ाइन करता है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सी चीज़ें कब लगेगी, कौन सी सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा क्लाउड यूज़ कर रहे हैं और कौन सा टूल यूज़ करना है और उसके बेनिफिट क्या है। तो जो भी टूल हम यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस रहती है कि ये टूल यूज़ क्यों करना है, इस पे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट गिर रहा है और क्या प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो रही है। ये चेक करके वो डिसाइड करके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करते हैं, फिर वो इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास आता है, हम उस पे काम करते हैं। ओके, ऐसे लाइक अकॉर्डिंग टू यू कौन से इम्पोर्टेंट टूल्स है कि अगर कोई फ्रेशर है उसको लर्न करने चाहिए स्टार्टिंग से ही? ओके, आप ऐसे कुछ 2-3 टूल्स मेंशन कर सकते हो? तो पहले तो लिनक्स आना ही चाहिए, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेटवर्किंग फंडामेंटल एंड क्लाउड, एनी वन क्लाउड, एंड देन when they are comfortable with these three things, then they can start learning Jenkins for CI/CD pipeline. Then they can start exploring the Terraform, and that is enough. If they want to learn more, get into the deep, then they can learn Docker and Kubernetes. But I prefer for the experienced people only for Docker and Kubernetes. आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन, अभी ये थोड़ा सा मुझे भी जानना था कि ये CI/CD, मतलब मैंने बहुत सुना है कि CI/CD पाइपलाइन बनानी होती है, या लाइक वो एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है कि CI/CD पाइपलाइन कैसे बनाते हैं हम लोग? ओके, वो क्या रहता है, जैसे डेवलपर कोड बिल्ड करता है, करेक्ट, तो कोड बिल्ड करने के बाद उसको डिप्लॉय करना होता है। इसके बीच में CI/CD हम चलाते हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। मतलब जब भी वो कोड पुश करता है गिटहब पे, तो वहाँ से हम वो कोड लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसको बिल्ड करते हैं, उसकी स्कैन करते हैं वल्नरेबिलिटी और जो भी डिपेंडेंसीज सब कुछ सही है। फिर जब भी वो CD का पार्ट रहा, सॉरी CI का पार्ट रहा, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, जैसे ही वो कोड बिल्ड हो गया उसका एक आर्टिफैक्ट बनता है, पूरी जो भी डिपेंडेंसीज फाइल जो भी है, एक इसमें हम जिप करते हैं उसको, उसमें jar var डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल स्ट्रक्चर रहता है उसका। तो उसके बाद उसका डिप्लॉय करते हैं, एक तो क्लाउड पे, AWS क्लाउड पे, नहीं तो कुबरनेटिस पे। थोड़ा सा हैवी है बट नहीं ठीक है। मतलब जब भी आप लोग, मतलब आप जैसे IT प्रोफेशनल्स आते हैं, आपका नॉलेज इतना शेयर करते हैं, तभी हम लोगों को भी पता चलता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो। अच्छा, तो जब भी हम लोग आप लोगों से बात करते हैं तभी हम लोगों को भी समझ में आता है, और तभी आई गेस जब हम लोग ये डिस्कस करते हैं तभी हमारे ऑडियंस तक ये इन्फॉर्मेशन जाती है। करेक्ट। ओके, अभी थोड़ा सा एक बेसिक क्वेश्चन के पास जाते हैं कि आपने भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन किए है, AWS में किया है और आपने CCNP पे भी किया है, राइट? तो वो CCNP होता क्या है एग्जैक्टली? CCNP नेटवर्किंग रिलेटेड है, Networking related, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है वो नेटवर्किंग। ओके, तो किस हद तक आपके करियर में इम्पैक्ट दिया है उस सर्टिफिकेशंस ने? Certification is most important because you are keep learning, upgrading yourself. You are into that mindset and you are into that environment. You automatically you are pushing yourself to do something every day. So if you have goal to achieve one of the certificate, that's really good to you that you always keep learning. So एक तो आपका अपग्रेड हो जाता है, और जो भी इंडस्ट्री में आपको वर्क करना है और जो भी मार्केट में चीज़ें चल रही है, तो आप वन स्टेप अहेड रहते हो क्योंकि आपने लर्न किया है। और एक आप बोलते हो कि सर्टिफिकेशन एक एविडेंस है कि ये चीज़ आपको आती है, आपने किया है। तो ये तो हो गया आपका सर्टिफाइड सर्टिफिकेशंस, राइट? तो आप अगर हम लोग कंसिडर करें कि AWS का, तो वो सर्टिफाइड AWS का हो गया। अगर किसी फ्रेशर को सर्टिफिकेशंस करने, तो कौन से ऐसे बेसिक सर्टिफिकेशन है जो स्टार्टिंग से उन्होंने करने चाहिए? ऐसे कुछ 1-2 सर्टिफिकेशन के नाम आप बता सकते हो तो? एक तो उन्होंने क्लाउड का सर्टिफिकेट करना है, AWS प्रैक्टिशनर है, बहुत ईजी है, 7-8 दिन में हो सकता है। फंडामेंटल है, क्लाउड क्या है, उसमें क्या चीजें रहती है, क्यों यूज करना है, बेसिक जस्ट, मतलब कुछ हैंड्स ऑन वगैरह नहीं है कि हाँ क्लाउड क्या रहता है, जस्ट इंट्रोडक्शन। किसी को कुछ पता नहीं क्लाउड क्या है, क्यों यूज करते हैं, कैसे होता है, तो उसके लिए प्रैक्टिशनर है। उसके बाद AWS सोल्यूशन एसोसिएट आर्किटेक्ट है, नेक्स्ट लेवल पे एक्चुअल क्लाउड कैसे यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल EC2 इंस्टेंस, जो सर्वर हम यूज करते हैं फिजिकली, AWS में EC2 एक सर्विस है जहाँ पे हम लिनक्स बेस्ड सर्वर यूज करते हैं। वहाँ से लॉग इन करके जो भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, कुछ टूल्स इंस्टॉल करना है, तो वहीं सर्वर से हम कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा AWS किया तो इट्स गुड फॉर देम। ओके, एंड देन सबकी सर्टिफिकेशन है लाइक Terraform,
उसका भी और ऐसे सर्टिफिकेट कोई मिल सकता है। प्लेटफॉर्म्स है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म दे कैन ग्रैब द सर्टिफिकेशंस और समथिंग? प्लेटफॉर्म AWS का डॉक्यूमेंटेशन और स्किल बिल्डर, लॉट्स ऑफ थिंग है AWS के। अगर ऑफिशियल साइट पे जाओगे वहाँ से आप लर्न Okay. कर सकते हो। यूट्यूब है, उडमी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से कर सकते हो। और जहाँ पे भी आपके नियर अबाउट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से जाके भी ट्रेनिंग ले सकते ओके, एंड दैट विल बी लाइक जो आपने अभी ऑनलाइन के लिए जो कोर्सेज के नाम बताए वो पेड है या अनपेड रहते हैं? हो। अगर उडमी की बात की तो पेड है, पेड यूडेमी का। और यूट्यूब पे तो बहुत सारे पेड और फ्री पे करेक्ट, प्ले लिस्ट है। लाइक आपको इतना सारा नॉलेज भी है, आपने शेयर भी किया इतने अच्छी अच्छी चीज़ें, तो ये जो आईटी डोमेन वो हम लोग बोलते हैं वो एवरी आफ्टर 6 मंथ इज इवॉल्विंग, तो हाउ डू यू स्टे अपडेटेड ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज और टूल्स जो आते हैं वो? तो अपडेटेड, अगर हम आईटी में जॉब करते हैं, कोई भी आईटी में जॉब करता है, अपग्रेड तो रहना ही पड़ता है। नहीं करेक्ट। तो आप लेफ्ट आउट हो जाओ अगर सेम इस पे काम कर रहे हो तो। इसके लिए मैं बताऊंगा कि जो भी आपके फ्रेंड्स है, जिसके साथ भी आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, ऐसे फ्रेंड देखो कि वो उसी डोमेन में है, ताकि आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिस्कशन भी उसी चीज़ का। और दूसरी बात यह है कि जो भी कम्युनिटीज़ है आप अटेंड कर लो, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ है, ऑफलाइन कम्युनिटीज़ है, उसका पार्ट बनो, इवेंट पे जाओ, नेटवर्क करो, लोगों से बात करो, लाइक लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाओ। ऐसे ही जो भी जब भी आप स्क्रॉल करोगे तो आपका दिमाग उसी उसी flow में फोकसली रहेगा। उसी सब्जेक्ट रिलेटेड और उसी टॉपिक रिलेटेड और उसी डोमेन रिलेटेड रह जाता है। तो यही 2-4 चीज़ें हैं जो आपको अपग्रेड करने में हेल्प करती है So there should be continuous learning and कंटिन्यूसली। okay. And what about the internship? How mandatory these internships are for the freshers? या इंटर्नशिप और रियली मैंडेटरी, बिकॉज फ्रेशर के लिए इंटर्नशिप मैंडेटरी इसलिए है कि उनको कुछ नॉलेज नहीं है एक्चुअल इंडस्ट्री में क्या होता है, कैसे वर्क हो। जो भी उन्होंने ग्रेजुएशन में जो भी लर्न किया है वो इम्प्लीमेंटेशन का टाइम होता है। इंटर्नशिप में ऐसा होता है कि जो भी एक्चुअल जॉब और जो इंडस्ट्री चलती है, किस बेसिस पे काम करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करना है, और जो आईटी का वर्क कल्चर है वो कैसे होता है, वो लर्न करने के लिए इंटर्नशिप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। Okay. If they don't want to go to internship, if they are getting the job offer, they can prefer for the job offer before going to internship. किस हद तक, मतलब अगर कोई फ्रेशर है, अगर उनको, चलो आपने जैसे बोला कि जॉब मिल भी गया, हम लोग बोल सकते हैं कि इमिडिएटली उनको प्रोजेक्ट मिल जाता है फ्रेशर्स को या नहीं? It depends on company. Some company क्या करती है, हायर तो कर लेती है लेकिन प्रोजेक्ट पे असाइन नहीं करती, ओके। क्योंकि उनका कुछ प्रोजेक्ट पाइपलाइन में होता है, इसलिए वो हायर करते हैं, फिर जैसे ही प्रोजेक्ट आते हैं तो असाइन कर। और कुछ कंपनी डायरेक्ट हायर करती है, डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे असाइन कर देती है। ओके। मोस्ट ऑफ कंपनी तो प्रोजेक्ट के लिए ही असाइन करती है। कुछ थोड़े कंपनीज है जो पहले ही हायर करके बेंच पे रखते हैं, फिर जैसे प्रोजेक्ट आए उसको असाइन कर देते हैं। ओके, स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा वो अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि ओके, कंपनीज में जाने के बाद कंपनीज टू कंपनी भी डिफर करता है प्रोजेक्ट्स के हाँ, रिलेटेड, correct. राइट? हाँ, पहले जब भी मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जब भी HR कॉल करेगी आपको तो पूछ सकते हो आप कि आप हायर कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पे असाइन करने वाले, हाउ इट इज, सो दे विल एक्सप्लेन। और ये भी एक चीज़ है कि स्टूडेंट्स नाउअडेज, लाइक स्टूडेंट्स खुद के भी प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हैं, राइट? तो वो कंसिडरेशन में लेते हैं, जो अगर हम लोग किसी कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं तो जस्ट बेस्ड ऑन आवर प्रोजेक्ट्स विच एनी पर्टिकुलर स्टूडेंट हैव बिल्ड इट, तो वो कंसिडर करते भी है उस प्रोजेक्ट को या नहीं? हाँ, वो तो कंसिडरेशन होता है, क्योंकि एक अपना पर्सनल ब्रांडिंग बोल सकते हैं हम उसको, कि मुझे Okay. ये चीजें आती है, मैंने ये चीजें किया है, इस टूल का यूज करके मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। करेक्ट। तो एक एविडेंस हो गया कि इसको ये चीजें आती है, टेक्नोलॉजी आती है, तो उसके ऊपर अगर वो कुछ भी क्वेश्चन करेगा तो क्रॉस क्वेश्चन भी करेगा तो आंसर दे पाएगा। वहां पे उसका टेक्निकल स्किल और कॉन्फिडेंस पता चल जाता है। ओके। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई फ्रेशर है जो डेवॉप्स में एंटर करना चाहता है, बट उसको कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं, तो वो कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है, जस्ट रेंज? Okay, so it's depends on company to company. Some companies like pay 3 lakh, 10 lakh as well. It's very higher range, but if you can expect 3 to 6 in between Okay, for freshers only. for fresh. And what about the experienced one, like those who have 3+ years of experience, how much salary they should expect? For experienced people, it's again depends on the company and urgency of that requirement. If they have urgency, then they can pay you beyond the range as well. But I will say the range above 6 and your current salary as well. Yeah, whatever you last drawn salary, you can
expect more than than that. 30, 40, 50%. It depends on the company range as well, and depends on company urgency as well. So, any other learning or any strategies you would recommend to those who are fresh or those who wanted to start their careers into DevOps? They have to be clear with their goal. I'm telling with my experience, when I pass out, I was very confused where I to go. As I am a electronics and telecommunication graduate, so where I can go in coding, networking, or electronics. So we have to be focused only one thing. If you are catching three things at a time, you won't get one thing. Write the goal and plan for it and go. You don't have to be doubt on yourself. It took time, but you have to be consistent, work on the skill, and Skills. always approach. Any learning resources or strategies you would like to recommend to the aspiring students, those who wanted to start their careers into DevOps? For learning strategy, first they need to good at fundamental, as I mentioned earlier, because I'm telling again and again because it's most important Mandatory. thing. Yeah, and then they should have to theory part isn't enough for the crack the interview or work in the Industries. No? industry. So what they need to do, focusing on the building the hands-on project. So I will recommend one project, 3-tier architecture for the AWS. It's really help. And for the resources, you can use the in internet. We have lots of resources for learning. We have YouTube, then Medium blog. Medium blog is really great. So the experienced people share their project and all the details, so it will build your confidence and we'll got to know that what happening in how it's work in the industry. That might help our students to Yeah, grab the it's certification. helped me too. I just have one last question. Just one piece of advice you would like to give to our students, those who are watching this podcast. So first I will tell they should have be clear with their goal, don't have to be confused, and they don't have to be self-doubt. All like fresher people, they don't have much knowledge, so they will start self-doubting, can do it or not. So उनको क्या करना है कि एक गोल सेट करना है और उस पर स्टिक रहना है. अच्छी चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अभी वो अगर वो करते रहेंगे डेफिनेटली उनको रिजल्ट मिल जाता है. तो first I will say write your goal and then stick with the goal, plan for it and work for it, and then learning to continuous learning should be there, correct? or not depends on theory part, but they have to start building the project. And there is lots experience, of we can say. and there is lots of resources in the internet, YouTube, anywhere they can implement. They should have to start, because sometimes what happen, human psychology, we think whenever I am ready, whenever I am comfortable, whenever I perfect, then I will start the job. It will delay their achievement. Correct. Push themselves and start the interview. Whenever first 2-3 times they will fail, what will happen, they will get lots of learning from there, and it will easy shortcut to get Start their careers, right? थैंक यू सो मच किरण कुमार, जो आपने इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने दी है. आई होप वो हमारी स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा हेल्प करे, और थ्रू दिस पॉडकास्ट मुझे भी बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिला. एंड यू हैव ग्रेट नंबर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे मैंने अभी बोला कि आई होप दिस पॉडकास्ट विल हेल्प आवर स्टूडेंट एज वेल. थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियोज. लर्न विद टेक्नोलॉजी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए और इतना ज़्यादा नॉलेज शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैव अ गुड डे. Thank you so much for having me here, and it was a great opportunity for me. Pleasure is all ours. Thank you so much. Thank you. Bye.